Good evening, one and all. Today, what we will do is we will begin with the model number 4, that is the refrigeration cycle. Okay. Now, what is refrigeration? In general, refrigeration means what? Cooling, right? What is refrigeration? Refrigeration is a process. What is refrigeration? Refrigeration means is nothing but cooling, right? Refrigeration means what? We are maintaining a substance or a body at temperature that is lower than the atmospheric temperature. Okay. Now, for example, in our home we are using a refrigerator, right? In refrigerator, what is the temperature? The temperature is less than the atmospheric temperature or the room temperature. Now, why? Then how we are doing that? We are removing the heat from that substance or that from that room, and we are taking out the heat and we are supplying to the reservoir. Okay, the heat transfer is taking place from the high temperature source. What is the high temperature source? The substance is a high temperature source. Atmosphere temperature जो है वो high temperature source है. And what is the low temperature sink? The refrigeration area which we want to keep cool. That is, we want to reduce the temperature. Okay, now what we are going to do? We are going to take away the heat from that area or that substance, and then we are going to transfer to the high temperature reservoir. Then nothing but refrigeration. In general, refrigeration means cooling. Okay, now how we are doing that? We are doing that by using a substance known as refrigerant. Okay, how we are doing that? That is maintaining the temperature below atmospheric temperature is by using a term known as refrigerant. Okay, now where is the refrigeration cycles are commonly used? We are using our refrigerators are there. There are few types of examples which are commonly using refrigeration cycles. Okay, basically our refrigerator. In that refrigerator, you may see we are having a compressor inside there, and one wire is there that surrounds the area which you want to keep the temperature below. The area where we are making ice and all, no, it is at temperature commonly very low as compared to the other areas of the refrigerator. Okay, now this performance of this refrigerator is noted by using a common term known as coefficient of performance. Okay, what is that term? That factor is. Okay, now what is coefficient of performance? The performance of a refrigerator is measured by factor known as coefficient of performance. And what it is? It is defined as a ratio of heat. How it is given? It is given by a term heat removed from the cold body upon work input. Okay, now see, that is nothing but a coefficient of performance. Now you can see this block diagram. Okay, what is this? This is my refrigerator. Means what is my work? This is the area which I want to keep at low temperature. What is this? This is a high temperature source or sink. This is low temperature source. Okay, now what is our aim? I want to take the heat away from this. Okay, now if I take away the heat, this is my work input. See, refrigeration is work consuming device. It is not work generating. I want to supply energy for this, right? How I supplying the energy? This is my work input supplied. This is my heat rejected. The heat, see, heat always, how the heat flow takes place? See here, always the heat transfer how the heat flow takes place from high temperature region to low temperature region, right? अभी सी हमारा हाई टेम्परेचर रीजन कौन सा है? T2 है, और लो टेम्परेचर क्या है? T1 है. तो हीट ट्रांसफर हमेशा कैसे होगा? T1 से T2 को जाएगा. और जो रेफ्रिजरेटर है इसका हीट, what is that? The temperature reduce. Okay, the temperature is always less in refrigerator. Okay, now what is the coefficient performance measure here? See, coefficient performance is equals to what? Heat removed from the cold body upon work done. Now what is this? See, coefficient performance may in refrigeration always heat supplied will be more and heat rejected will be less. So sorry, wait, in heat pump heat addition is more than heat rejection. Okay, and it is reverse in what? In refrigeration. What is our main aim? Our main aim is to extract the heat. So QR will be more than what? Heat supplied. So W is equals to what? QR minus QA. For what? For refrigerator. Now what is coefficient performance? Heat added or heat removed from the cold body upon work input. Now what is work input? W. What is that? QR upon QA. Now what is Q? T1, that is equal to T1 upon T2 minus T1. What it is? It is coefficient of performance. Now what I'll do? I'll take this QA common. Okay, what I'll do? I'll take this QA common. So QA, how we are taking it common? By multiplying and dividing by QA. So QA by QA upon QR minus QA is equal minus Q upon QA. What it will be? 1 upon QR minus QA minus 1. So what it is? QR by QA, T2 by T1. So what? See, what it is?
coefficient performance of refrigerator is equals to 1 divided by T2 minus T1 upon T1, and that is, see, if I'm considering the heat pump, then coefficient of performance of heat pump is equals to what? 1 plus coefficient of performance of refrigerator. This is nothing but coefficient of performance. This term is nothing but coefficient of performance. Now see, we are using a refrigerant in refrigerator to extract heat. Now this refrigeration should have different properties. Okay, what is the properties? The different properties like thermodynamic properties are there, physical properties are there, and mechanical properties. Different of the properties which a refrigeration consist of. Now, okay, what are thermodynamic properties? Thermodynamic properties are nothing but the boiling point, what is that? Boiling point, freezing point, condenser pressure, critical temperature, latent heat. बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए रेफ्रिजरेंट का? हमेशा बॉइलिंग पॉइंट कितना रहना चाहिए? लो रहना चाहिए. द रेफ्रिजरेशन शुड नॉट बॉयल एट हाई टेम्परेचर्स. नाउ इफ टेम्परेचर इंक्रीज द रेफ्रिजरेशन शुड नॉट स्टार्ट बॉइलिंग, सो इट शुड हैव लो बॉइलिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट लो रहना चाहिए. क्रिटिकल टेम्परेचर, व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? क्रिटिकल टेम्परेचर बोले तो अभी सपोज हमारा वेपर हम यूज़ कर रहे हैं. अगर टेम्परेचर, व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट? द पॉइंट एट विच द फेस चेंज टेक प्लेस. देन में क्रिटिकल पॉइंट, अभी क्रिटिकल टेम्परेचर जो है इट शुड बी लो. इफ़ आई एम यूजिंग अ वेपर, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, सपोज 50 डिग्री सेल्सियस रेफ्रिजरेंट का क्रिटिकल पॉइंट है. मैंने वेपर लिया है 15 डिग्री सेल्सियस पे, वो क्या लिक्विड नहीं होना चाहिए. सो क्रिटिकल पॉइंट कितना रहना चाहिए? क्रिटिकल टेम्परेचर शुड बी लो, सॉरी क्रिटिकल टेम्परेचर शुड बी हाई नॉट लो. और नेक्स्ट क्या है? लेटेंट हीट. व्हाट इज लेटेंट हीट? द हीट रिक्वायर्ड टू फेज चेंज इज नथिंग बट लेटेंट हीट. अभी मुझे लिक्विड से वेपर करना है और मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, तो फेज चेंज में जो हीट यूज़ होता है ना, उसको लेटेंट हीट बोलते हैं. ये थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ है. देन व्हाट इज सेफ वर्किंग प्रॉपर्टीज? टॉक्सिसिटी. द रेफ्रिजरेंट शुड नॉट बी टॉक्सिक. देन नेक्स्ट इज इट शुड नॉट बी फ्लेमेबल. करोसिव प्रॉपर्टी, फ्लेमेबिलिटी, corrosivity. रेफ्रिजरेंट कहाँ यूज़ करते हैं हम? पाइप लाइन्स रहते हैं फ्रिज के पीछे. एग्जाम्पल फ्रिज लिए तो if you're taking fridge, now see, it should not be corrosive. If the refrigerant which you're using is corrosive, means what? It corrodes the pipes, and it corrosion, what happens? The pipes may corrode and get rust. Due to that rust, what happen? It may break, right? So it should be less corrosive. टॉक्सिक नहीं रहना चाहिए. ये प्रॉपर्टीज़ है. कौन सी प्रॉपर्टीज़ है? ये वर्किंग प्रॉपर्टीज़ है. नेक्स्ट क्या है हमारे? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन से है? स्पेसिफिक वॉल्यूम, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, थर्मल कंडक्टिविटी. ये सभी क्या है? ये अदर प्रॉपर्टीज़ है जो कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कंसिडर करते हैं. दिस इज नथिंग बट प्रॉपर्टीज ऑफ ए रेफ्रिजरेंट. ओके, क्या क्या पढ़े हम? इंट्रोडक्शन टू रेफ्रिजरेशन के, कोएफिशिएंट परफॉर्मेंस पढ़े. द नेक्स्ट क्या हुआ? प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट हुआ. टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट्स है. ओके, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट विच कॉमनली बीइंग यूज्ड. फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट है. वो डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टीज दे आर बीइंग यूज्ड. ओके, नाउ व्हाट इज द मेन पॉइंट इन रेफ्रिजरेशन साइकिल इज टू स्टडी अवर कैनॉट साइकिल. कैनॉट साइकिल रेफ्रिजरेशन में यूज़ किए हैं. See, what we'll do is we'll study a Carnot cycle on रेफ्रिजरेशन में. दो साइकिल है सिर्फ. एक कैनॉट साइकिल है, एक रिवर्स ब्रेटन साइकिल है, और वेपर ऑब्जॉर्प्शन साइकिल है. तो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे कैनॉट साइकिल से. देखो मैंने ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ किया है कैनॉट साइकिल का. ये क्या है? ये हमारा कंप्रेसर है. नाउ सी व्हाट हैपेंस इज फ्रॉम 1 to 2 क्या होता है? एयर रेफ्रिजरेशन. यहाँ पे कौन सा रेफ्रिजरेशन यूज़ करें? वेट वेपर. व्हाट इज द रेफ्रिजरेंट विच वी आर यूजिंग? वेट वेपर इज द रेफ्रिजरेंट विच वी आर यूजिंग इन दिस साइकिल. ओके, इन दिस कैनॉट साइकिल. Now that wet vapor enters into the compressor. वेट रेफ्रिजरेंट क्या होता है यहाँ पे? इट कंप्रेसेस. सो व्हाट डज द कंप्रेसर डू? इफ इट कंप्रेसेस, व्हाट हैपन टू द प्रेशर टेम्परेचर? यहाँ पे क्या हुआ? प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ इंक्रीज हुए. वॉल्यूम क्या हुआ? डिक्रीज हुआ. सो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर वेपर फ्रॉम दिस कंप्रेसर इन 1 to 2 एंटर्स इनटू द कंडेंसर. व्हाट इज द कंडेंसर? अभी ये कौन सा प्रोसेस है? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, व्हिच इट इज. ओके, दिस इज माय आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस. अभी यहाँ पे क्या हुआ? हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर जो वेपर रेफ्रिजरेंट था, कहाँ एंटर हुआ? कंडेंसर में. व्हाट इज अ कंडेंसर? अ कंडेंसर इज अ डिवाइस व्हिच कंडेंस पहले तो क्या? टेम्परेचर रिड्यूस करता है. ये कौन सा प्रोसेस है हमारा? आइसोथर्मल कंप्रेशन. आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या हुआ? कांस्टेंट टेम्परेचर कंप्रेशन हुआ. तो कंप्रेस करने के बाद में टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो क्या होगा? ये प्रेशर डिक्रीज हुआ. प्रेशर डिक्रीज हुआ तो
there is a phase change of liquid. Now this wet vapor is converted into liquid. Now this high pressure, low temperature, high pressure liquid enters into this engine, or here it is expansion taking place. So what it is? Isentropic expansion. So once the liquid expands, it absorbs the heat from this area, then after absorbing the heat, it is again taking place, is entering into the evaporator. Now what is this? It is isothermal expansion process. isothermal expansion क्या हुआ? यहाँ पे जो लिक्विड था वो एक्सपांड हुआ, एवापोरेटर ने यहाँ पे हीट रिजेक्शन हुआ, हीट रिजेक्शन करके लो टेम्परेचर लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट इज अगेन टेकन बैक टू द कंप्रेसर एंड द साइकिल रिपीट्स. ओके यहाँ पे देखो कितने प्रोसेस है? 4 प्रोसेस है. कौन कौन से प्रोसेस है? 2 आइसोथर्मल है, 2 आइसेंट्रोपिक है. जो पहले के है, फर्स्ट कौन सा है? ये वाला आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन है. ये वाला क्या है? आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन है. यहाँ पे क्या है? आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन है. यहाँ पे क्या है? आइसोथर्मल एक्सपांशन. देखो इस सेम मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है ना पीवी डायग्राम. व्हाट 1 to 2 कंप्रेसर है तो कंप्रेसर होगा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हुआ. 2 to 3 क्या है? फिर से कंप्रेशन ही हो रहा है. कौन सा कंप्रेशन हो रहा है? आइसोथर्मल. यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट है. 3 to 4 क्या है? आइसोथर्मल आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन है. आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन. 4 to 1 कौन सा हुआ? फिर 4 to 1 अगेन दिस आइसोथर्मल एक्सपांशन. ये दिस इज योर पीवी डायग्राम. सिमिलरली यहाँ पे क्या ड्रॉ किया मैंने? टीएस डायग्राम है. टीएस डायग्राम में एंट्रोपी देखो 1 to 2 में एंट्रोपी कांस्टेंट था. देखो S1 इज इक्वल टू S2. अगर मैंने लाइन को प्रोजेक्ट किया तो S1 इज इक्वल टू S2 हुआ. 2 to 3 में क्या है? कांस्टेंट टेम्परेचर बस था. देखो T3 इज इक्वल टू T2. ये कौन सा? 3 to 4 आइसेंट्रोपिक था. S3 इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइन है. देखो मैंने अगर यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट किया तो क्या होगा? S3 इज इक्वल टू S4 हुआ. इसको मैंने अगर प्रोजेक्ट किया तो S1 इज इक्वल टू S2 मिलेगा. इसको अगर मैंने ऐसे प्रोजेक्ट किया तो T2 इज इक्वल टू T3. इसको अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट किया तो क्या हुआ? T1 इज इक्वल टू T4. ओके, दिस इज नथिंग बट योर PV एंड TS डायग्राम. अभी देखो 1 to 2 में क्या हो रहा है? 1 to आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन में क्या हो रहा है? आइसेंट्रोपिक है बोले तो क्या होगा? हीट ट्रांसफर 0 होगा, बिकॉज एंट्रोपी इज कांस्टेंट. आइसेंट्रोपिक में हीट ट्रांसफर 0 हुआ. W1 to 2 क्या है? फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q इज इक्वल्स टू U प्लस W. अभी हमारा Q 0 है तो U प्लस W हुआ. तो व्हाट इज W? W विल बी माइनस U. व्हाट इज U? चेंज इन इंटरनल एनर्जी. सो W1 to 2 इज इक्वल्स टू माइनस U1 to 2. सिमिलरली आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होगा? Q इज इक्वल्स टू व्हाट? C. आइसोथर्मल कंप्रेशन है बोले तो क्या हीट ट्रांसफर? व्हाट इज दैट? इंटरनल एनर्जी विल बी 0, क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या है? T3 माइनस T2 है, वो 0 हुआ. अभी देखो वी नो दैट DQ इज इक्वल्स टू TDS. व्हाट इज DS? हीट सप्लाइड इज इक्वल्स टू चेंज इन एंट्रोपी व्हेन टेम्परेचर कांस्टेंट. एंट्रोपी है ये. अभी Q कौन सा है हमारा? प्लस 2 to 3 है. और इस QR हीट रिजेक्शन हो रहा है यहाँ पे. कहाँ पे? कंडेंसर में, क्योंकि कंडेंसर क्या कर रहा है? हमारा हीट रिजेक्ट करके वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है. देखो Q2 to 3 क्या है? TDS में अप्लाई किया तो T2 इंटू S2 माइनस S3. सिर्फ हम TS डायग्राम S2 इज इक्वल टू S1, S2 इज इक्वल टू S1 है और S3 इज इक्वल टू S4 है. सो आई एम गेटिंग Q22 इज इक्वल टू T2 इंटू S1 माइनस S4. ये क्या है? हीट रिजेक्ट हो रहा है. कहाँ पे? प्लस 2 to 3 में. अभी यहाँ पे देखो वर्क डन कितना हुआ है? वर्क डन इज इक्वल्स टू Q2 to 3. प्लस 3 to 4 क्या है? आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन है. यहाँ पे आइसेंट्रोपिक बोले तो हीट ट्रांसफर 0 हुआ. मैंने पहले एक्सप्लेन किया था. वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस चेंज इन इंटरनल एनर्जी माइनस 3 to 4. अभी लास्ट कौन सा है? आइसोथर्मल है. आइसोथर्मल बोले तो टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ. हीट ट्रांसफर व्हाट इज दैट? Q चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हुआ. हीट ट्रांसफर इज इक्वल्स टू व्हाट? हीट ट्रांसफर इज इक्वल्स टू वर्क डन. सो T1 इंटू S माइनस S4. अभी देखो व्हाट इज दैट? इज नथिंग बट वर्क डन इज इक्वल्स टू Q4 to 1 W4 to 1 इज इक्वल्स टू वर्क डन इज इक्वल्स टू हीट ट्रांसफर. अभी क्या है? आई वांट टू कैलकुलेट द वर्क डन. व्हाट्स फॉर्मूला फॉर वर्क डन? हीट रिजेक्टेड माइनस हीट सप्लाइड. यहाँ पे उल्टा क्यों है? क्योंकि रेफ्रिजरेशन है. हीट रिजेक्शन ज़्यादा है हीट सप्लाई से. सो व्हाट इज हीट रिजेक्शन? T1 इंटू S माइनस S4 एंड T2 इंटू S1 माइनस S4. हीट रिजेक्ट कहाँ हो रहा था? एवापोरेटर में. और हीट सप्लाई कहाँ हो रहा है? हमारे कंडेंसर में. तो T1 S1 माइनस S4 कॉमन है. क्या बचा? T1 माइनस T2. अभी कोएफिशिएंट परफॉर्मेंस क्या है? देखो कोएफिशिएंट परफॉर्मेंस इज इक्वल्स टू व्हाट? हीट सप्लाइड अपॉन हीट रिजेक्टेड माइनस हीट सप्लाइड. हीट सप्लाइड कहाँ हो रहा है? 4 to 1 एवापोरेटर में हुआ. हीट रिजेक्शन कहाँ हो रहा है? हीट रिजेक्शन इसमें T2 कहाँ पे? यहाँ पे इन कंडेंसर. T2 इंटू S माइनस S4 इंटू T1 माइनस S1 माइनस S4. अभी क्या कॉमन है? S1 माइनस S4 हुआ. ये सभी कैंसिल हुआ. क्या बचा? T1 अपॉन T2 माइनस T1.